નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો બધા? મજામાં? ખબર છે ને, હિન્દી ટીચર અંજુ ટીચર છું. આપણે આજે ત્રીજો પાઠ ભણવાનો છે. પહેલું કાવ્ય આરાધના કર્યું, એ તમને મેં પાકું કરવાનું કીધું હતું, બધાને કીધું હતું કંઠસ્થ કરી લેજો, કારણ કે કંઠસ્થ કરેલું કાવ્ય હોય ને તો પ્રશ્ન જવાબ આપણને ગમે ત્યાંથી પૂછે ને તો આપણને આવડી જાય, બરાબર? અને એના પ્રશ્ન જવાબ તો એવા જ છે કે તમને તરત આવડી જાય. પછી બીજો પાઠ આપણે કર્યો ને, બરાબર, ન્યાયમૂર્તિ કર્યો. તો એ ન્યાય છે એ પાઠ તમે બરાબર વાંચી લીધો હશે, સમજી લીધો હશે. હજી ન સમજાતું હોય તો બીજી વાર પણ વિડીયો જોવાની છૂટ. એના પ્રશ્ન જવાબ પણ મેં તમને લખવાના કીધા છે. પાકી નોટમાં પણ લખી નાખવાના અને રફ નોટમાં પણ કરવાના, બરાબર ને? ચાલો, તો આજે આપણે છે ને પાઠ ત્રીજો ભણવાનો છે. ક્યાં નિરાશ હોવા જાય, નિબંધ પ્રકારનો પાઠ છે. એના લેખક હજારી પ્રસાદ દ્વિવેદી છે. પાઠનું નામ સાંભળીને આપણને એમ થાય, કારણ કે નિબંધ પ્રકારનો પાઠ છે, આમાં કોઈ કહાની નહીં આવે, વાર્તા નહીં આવે. આ તો આખી સમજવાની વસ્તુ છે, પણ બહુ સરસ છે. તમે એકવાર સમજો ને તો તમને બહુ મજા આવશે. પાઠનું શીર્ષક જ સરસ છે પાઠે કે ક્યાં નિરાશ હોવા જાય. નિરાશ એટલે ઘણી બધી વાર આપણે ઉદાસ થઈ જાય, આપણને સમાજની અંદર ઘણું બધું એવું બનતું હોય, ખોટું થતું હોય, આપણે સાચું કાર્ય કરતા હોય, આપણે પ્રમાણિક હોય, અને છતાંય સમાજમાં આપણે જોતા હોય છે કે ઘણું બધું ખોટું બનતું હોય છે. તો આવું બધું ખોટું જોઈને આપણને નિરાશા ઉત્પન્ન થાય. આપણને આટલું આપણું સારું કાર્ય કરીએ છીએ, આટલો પરિશ્રમ કરીએ છીએ, આટલી મહેનત કરીએ છીએ, અને તોય આપણને કંઈ ફાયદો નથી થતો. અને આપણે આપણી આજુબાજુમાં એવું જોતા હોઈએ છીએ કે આ કેટલું ખોટું કામ કરે છે, અને છતાંય જો તો ખરા કેટલા આનંદ થઈ ગયો છે, ગાડી, બંગલા, નોકર, ચાકર, એવા બધાને જોઈને તો આપણું મન એકદમ ઓલું થઈ જાય, ઉદાસ થઈ જાય, નિરાશ થઈ જાય. પણ મિત્રો, અહીંયા આપણને એવા ઉદાહરણ આપ્યા છે કે જેના દ્વારા આપણને ખબર પડે કે આપણે બિલકુલ નિરાશ થવાની જરૂર નથી. કારણ કે આ બધી પ્રમાણિકતા છે કે મનુષ્યતા છે, એ બધું હજી સમાજમાં છે જ. ઘણી બધી એવી વાતો છે કે જેના દ્વારા આપણે આશાવાન બનવાનું છે, પોઝિટિવ બનવાનું છે, નેગેટિવ બનવાનું નથી. તો આવી જ સુંદર વાત છે. ગુજરાતીમાં મેં તમને એટલે કહ્યું કે ઘણા છોકરાઓ એમ કહે છે કે પછી અમને સમજાતું નથી, સંભળાતું નથી. તો તમારે અત્યારે પાઠ્યપુસ્તક છે ને એ ખુલ્લું રાખવાનું છે, બરાબર? એટલે હું તમને સમજાવતી જઈશ, વચ્ચે વાંચતી જઈશ, એટલે જ્યારે વાંચું ત્યારે તમારે ચોપડીમાં આંગળી રાખી અને બરાબર જોવાનું, અને સમજાવતી હોઉં ત્યારે તમારે મારી સામે જોવાનું, બરાબર ને? ઓકે, ચાલો. તો पाठ तीसरा, क्या निराश हुआ जाए, लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। सबसे पहले हम देखते हैं, सब में क्या देखते हैं, लेखक का परिचय देखते हैं। तो पहले हम लेखक का परिचय देखेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी, जन्म सन 1907 ईस्वी, निधन सन 1979 ईस्वी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म बलिया, उत्तर प्रदेश में जो गांव है बलिया, जिले के दुबे का छापरा नामक गांव में उसका जन्म हुआ है। पारिवारिक परंपरा अनुसार संस्कृत का अध्ययन शुरू करके उन्होंने हिंदू काशी विश्वविद्यालय, काशी यूनिवर्सिटी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी है, हम कल्पना नहीं कर सकते इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। पहले सब काशी ही पढ़ने के लिए जाते थे। तो हिंदू काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिष आचार्य की परीक्षा उत्तीर्ण की। गुरुदेव रविंद्रनाथ के आश्रम में 1940 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक, यानी कि 10 साल तक हिंदी भवन के निर्देशक रहे। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी एवं पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष पद पर कार्य उन्होंने किया। भारत सरकार ने उन्हें, हमें पता है कि अपनी योग्यता पर, विशेष कार्य करने पर, विशेष अध्ययन करने पर भारत सरकार है हमें पारितोषिक देते हैं, अवार्ड से सम्मानित करते हैं। तो यहाँ पर भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया। उपाधि माने डिग्री, डिग्री से सम्मानित किया। हिंदी
साहित्य जगत में द्विवेदी जी एक निबंधकार, उपन्यासकार, समालोचक तथा शोधकर्ता, इतिहासकार के रूप में प्रचलित है। उपन्यास यानी कि नोवेल, गुजराती में जिसे हमें नवलकथा कहते हैं, नवलकथा। तो निबंध प्रकार का साहित्य उन्होंने लिखा है, उपन्यास प्रकार का साहित्य लिखा है और साथ साथ वे समालोचक के रूप में भी उन्होंने कार्य किया है। अशोक के फूल, अब उसकी कृतियां कौन कौन सी रचनाएं उसने लिखी है? अशोक के फूल, विचार प्रवाह, कुटज, कल्पलता आदि निबंध संग्रह, बाणभट्ट आत्मकथा, पुनर्नवा, चारुचंद्रलेख, अनामदास का पौधा उपन्यास तथा कबीर, सूरदास, हिंदी साहित्य का आदिकाल, साहित्य सहचर, हिंदी साहित्य, उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका आदि आलोचना तथा इतिहास ग्रंथ है। प्रस्तुत ये थी लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है, निबंधकार, उनके बारे में उसका परिचय था। अब हमारा जो ये पाठ है, क्या निराश हुआ जाए, निबंध प्रकार का, मैंने आपको ये तीसरी बार बोला है कि ये निबंध प्रकार का पाठ है। तो इस प्रस्तुत निबंध में लेखक ने क्या कहा है उसको हम देखेंगे कि प्रस्तुत निबंध में द्विवेदी जी ने यह समझाया है कि तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है। वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। क्या बताते हैं लेखक कि भारतीय समाज में अनाचार है, दुर्गुण है, बाहरी, ये सब क्या है, बाहरी रूप से है, लेकिन आज भी हम देखते हैं कि मनुष्य के दिल में मनुष्यता, मानवता आज भी कायम है। कई ऐसे मूल्य जो है कि जो उसके दिल में आज भी कायम है। अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताया है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन के प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। कभी कभी हमारे जीवन में, समाज में ऐसी घटनाएं होती है, प्रायः क्या होता है कि जब हम अखबार खोलते हैं या टीवी को देखते हैं तो प्रायः क्या होता है कि तस्करी, चोरी, लूटपाट, भ्रष्टाचार आदि के समाचार हम देखते रहते हैं। तो हमें लगता है कि क्या यही सब रह गया है अब भारत में, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन आज भी कई ऐसी घटनाएं भी इस पाठ में दी गई है, हमारे जीवन में भी घटी होगी, कि जिससे हमें मालूम होता है कि इसके साथ साथ क्या है, तो मानवीय मूल्य आज भी है। कई लोग ऐसे भी है कि जिसके साथ साथ हमें भी जीने की प्रेरणा मिलती है। तो यहाँ पर ये दो प्रकार की घटनाएं हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम कार्य करते ही रहते हैं, परिश्रम करते ही रहते हैं और हमें ही टोका जाता है, हमें ही कहा जाता है कि यहाँ पर आपने भूल की, यहाँ पर आपने भूल की। तो हमें लगता है कि ये तो कुछ नहीं करता, तो इसको तो कोई नहीं कहता, और हम करते हैं तो हमें कहते हैं। देखो, आप भी लेसन करके हमें दिखाते हैं, कई बच्चे दिखाते हैं, कई नहीं दिखाते। तो जो दिखाते हैं वो अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि भाई बेटा यहाँ पर तेरी भूल है, ये किया है, तो आप करते हैं, फिर भी आपको कहना पड़ता है, लेकिन आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, आपको ये करना ही है। लेकिन कई लोग ऐसे हैं, देख लेते हैं या नहीं देखते, पता नहीं ये क्या करते हैं। यहाँ तो साइन आ जाती है, सीन की साइन आ जाती है, हमें पता चल जाता है कि इसने देखा होगा, लेकिन हमें जो हम होमवर्क देते हैं वो हमें करके दिखाते नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है। आप करेंगे, आपको कहेंगे, लेकिन आपकी भूल है, उसको आपको सुधारने का मौका मिलता है, तो इससे हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। लेकिन बार बार देखने से क्या होगा, बार बार रटने से क्या होगा, एक बार में कोई वस्तु में याद नहीं रहती, बार बार रटना पड़ता है, और बार बार रटने से ये हमारे मगज में, हमारे मस्तिष्क में, ये हमें कोई एक जगह पर वो रह जाता है, हमारी मेमोरी में ये रह जाता है, और जब हम परीक्षा देने बैठेंगे तब ये मेमोरी में से निकलेगा, तो क्या होगा, तो हमें आनंद आएगा ना। लेकिन एक बार पढ़कर, एक बार देखकर आप उसे छोड़ दोगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। बार बार देखना होगा, बार बार लिखना होगा। तो हम अब आगे उसका पाठ, हम जो पाठ में जो दिया गया है वो अब हम बाद में पढ़ेंगे। आज इतना ही। 9 मिनट ऊपर थी।